Let me show you now something in 1 John chapter 2. अब मैं आपको पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय से कुछ दिखाना चाहता हूँ। See, John's gospel is written for believers. यूहन्ना का सुसमाचार ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। In the first verse of 1 John 2, it says, "My little children, I'm writing to you about Jesus Christ, our advocate." पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पहले वचन में लिखा है, हे मेरे बालकों, यीशु मसीह जो हमारा वकील है उसके विषय में मैं आपको लिखता हूँ। And to these little children, believers, he writes. और इन छोटे बालकों विश्वासियों के लिए वो लिखता है। Verse 28. 28 वचन, Little children, अतः हे बालकों, there'll be two types of people when Christ comes. जब मसीह लौटेगा तो उस दिन दो प्रकार के लोग होंगे। Some will rise up to meet him and some will fall away. कुछ जो उठ खड़े होंगे उससे मिलने के लिए और कुछ जो गिर जाएंगे। We say, oh, I thought it's only the unbelievers who are going to fall away. और हम कहते कि नहीं, मुझे तो लगा केवल अविश्वासी गिर जाएंगे, हटेंगे। Oh, some believers. नहीं, कुछ विश्वासी भी। Little children. हे बालकों, 28. 28 वचन, If you abide in him all the time, अगर आप निरंतर उसमें बने रहो, that is by keeping our conscience clear 24 hours of the day. ये हमारे विवेक को दिन के 24 घंटे साफ रखने के द्वारा है। That is very easy. ये बहुत आसान है। He's not talking about overcoming sin. He's talking about confessing sin immediately. वो पाप पर विजय पाने के बारे में नहीं कह रहा, वो पाप को तुरंत कबूल करने के विषय में कह रहा है। Confess sin immediately. At time, you will overcome those sins in a little while. अगर आप पाप को तुरंत कबूल करोगे तो कुछ समय में आप उन पर जय पाओगे। Reason you don't overcome sin is because you don't confess sin immediately. आप ये जो कारण है क्यों आप पाप पर जय नहीं पाते, क्योंकि आप तुरंत उन पापों को कबूल नहीं करते। You don't ask forgiveness from your wife or your husband or your neighbor or your relative. आपके पत्नी, आपके पति, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार से आप माफी नहीं मांगते। No, we are too proud to do that. क्योंकि हम बहुत घमंडी है ये करने के लिए। Too proud to say, I'm sorry, that was my mistake. हम बड़े घमंडी है ये कहने के लिए, मुझे माफ करो, ये मेरी गलती थी। No wonder you keep on getting defeated year after year after year after year. फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि साल प्रति साल आप हारे हुए रहते हो, हारे हुए रहते हो। When will you ever come to victory? कब आप विजय तक पहुंचोगे? When you humble yourself. जब आप अपने आप को नम्र करोगे। God will give you grace. परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। Humble yourself to say to people, I'm sorry, that was my mistake, please forgive me. अपने आप को नम्र करें कि आप लोगों को कह पाए कि मुझे क्षमा करो, वो मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा करें। Why do those words get stuck in your throat that you never say it? ये शब्द क्यों आपके गले में अटक जाते हैं कि आप इन्हें कभी कह नहीं पाते? Only one reason. एक ही कारण है, Pride. घमंड। The sin of the devil, filthy, stinking pride. शैतान का पाप, बिल्कुल गंदा बदबू आने वाला घमंड। That pride shows you got a little bit of the devil in you. वो घमंड ये दिखाता है कि शैतान का कुछ हिस्सा आपके अंदर है। You don't realize that. आप इसको समझ नहीं पाते। Get rid of that little bit of the devil in you. शैतान का जो छोटा हिस्सा आप में है उसे निकाल फेंके। That pride that prevents you from saying I'm sorry. वो घमंड जो आपको रोकता है किसी से माफी मांगने से। Pride that prevents you from saying it was my fault, please forgive me. वो घमंड जो आपको रोके रखता है ये कहने से कि ये मेरी गलती थी, मुझे क्षमा करे। Those people will shrink away from the Lord in shame, it says in verse 28. 28 वचन में लिखा है, ऐसे लोग प्रभु के आने पर उससे लज्जित होकर पीछे हटेंगे। So remember, verse 28 says there are two types of believers that are going to be when Christ comes. और इसलिए 28 वचन को याद रखिए, जब मसीह आएगा तो दो प्रकार के विश्वासी होंगे। One will say, oh, praise the Lord, Lord, we're ready to meet you. We're going to be raised up to, lifted up to meet you. एक जो कहेंगे प्रभु की स्तुति हो, हम खुश है प्रभु तुझसे मिलने के लिए, जो उठाए जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए। And others, और दूसरे, they will shrink away, they'll try to hide under the rocks and caves. वे शर्म से पीछे हटेंगे, वे छिपने की कोशिश करेंगे चट्टानों के नीचे। We thought that's only the ungodly unbelievers. हमें लगता था कि केवल भक्ति न रखने वाले अविश्वासी लोग हैं। But it says here, little children, if you don't abide in him, you will also shrink away from him in shame at his coming. पर यहाँ लिखा है, हे बालकों, अगर तुम उसमें बने नहीं रहते तो जब वो प्रकट होगा तब लज्जा से तुम पीछे हटोगे। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Believe it and I preach it. मैं इस पर विश्वास करता हूँ और मैं इसका प्रचार करता हूँ। All of God's children who don't abide in him, when Christ comes, they will shrink away, just like the unbelievers. They'll cry to the rocks and mountains to cover them. परमेश्वर के सारे बच्चे जो
उसमें बने नहीं रहते, जब प्रभु वापस लौटेगा तो बिल्कुल अविश्वासियों के जैसे वे भी चट्टानों से कहेंगे कि वो अपने ऊपर गिरकर उन्हें छुपाए। Most preachers don't preach this to you कई प्रचारक आपको ये प्रचार नहीं करते because they want your money. क्योंकि वो आपका पैसा चाहते हैं। I never take money from anybody, and that's why I can preach freely. मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता, इसलिए मैं इतने स्वतंत्रता से प्रचार कर पाता हूँ। Money is what has destroyed most preachers from preaching the truth. वो पैसा है जिसने कई प्रचारकों का नाश किया है कि वे सत्य नहीं प्रचार करते, Preach the whole word of God. वे परमेश्वर के पूरे वचन का प्रचार नहीं करते। They don't preach that we must seek to please the Lord even now, just like we will seek to please Him in heaven. वे ये प्रचार नहीं करते कि हमें जैसे हम स्वर्ग में प्रभु को प्रसन्न करना चाहेंगे, वैसे ही अभी भी हमें कोशिश करनी है उसको प्रसन्न करना। They don't preach 1 John chapter 2 verse 6, which says that we must walk as Jesus walked. वे पहला यूहन्ना 2:6 का प्रचार नहीं करते कि हमें वैसे चलना है जैसा मसीह चलता था। We read in verse 28, just now we read 1 John 2:28, that only those who abide in Him will rise up to meet Him. हमने अभी पहला यूहन्ना 2:28 में पढ़ा, जो उसमें बने रहता है वही ऊपर उठेंगे उससे मिलने के लिए He comes. जब वो वापस लौटेगा। The mark of abiding in Him. उसमें बने रहने का चिन्ह क्या है? That is described earlier in the same chapter in verse 6. उसी अध्याय के शुरुआत में 6ठे वचन में वो कहा गया है। They seek to walk in the same way that Jesus walked. वे वैसे ही चलने की कोशिश करते हैं जैसे यीशु चलता था। 1 John 2:6. पहला यूहन्ना 2:6। Almost no preacher preaches on this. शायद कोई भी प्रचारक इस पर प्रचार नहीं करता। Abide in Him, you must walk as He walked. अगर आप उसमें बने रहते हो तो आपको चाहिए आप वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। It says in verse 28, then you will be ready to meet Him. और फिर 28 वचन में कहता है, तब आप तैयार हो जाओगे उससे मिलने के लिए। What does it mean to walk as He walked? इसका क्या मतलब है कि हम वैसे चले जैसे वो चलता था? That if you follow me, deny yourself, take up the cross and follow me. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप का इनकार करो, क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे चलो। That means for 33 and a half years, every day, He took up the cross and walked. इसका मतलब है 33.5 वर्षों के लिए उसने अपना क्रूस उठाया और वो चला। He denied Himself every single day. उसने अपने आप का हर दिन इनकार किया। When people called Him the devil, जब लोगों ने उसे शैतान कहा, He denied Himself and says, I will not be affected by that. I will love them and forgive them. उसने अपने आप का इनकार करके कहा, मैं इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उनसे प्रेम करूंगा, उनको क्षमा करूंगा। This is one example of taking up the cross. ये क्रूस उठाने का एक उदाहरण है। Dying to self. अपने आप के लिए मरना। I've tried to understand what does it mean to die to self. मैंने ये समझने की कोशिश की है अपने आप के प्रति मरने का क्या मतलब होता है। It means to be like a dead man. उसका मतलब है एक मरे हुए इंसान के जैसे होना। People sin against us. जब लोग हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, Go to a dead man and say, you're like a devil. एक मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर कहे कि तुम शैतान जैसे हो, He will not change his expression. उसके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदलेंगे। The same way, if you go and tell him, oh, you're a great prophet, you're a great man of God, then he doesn't change his expression. वैसे ही आप अगर उस मरे हुए व्यक्ति को जाकर कहे तुम एक महान व्यक्ति हो, परमेश्वर के एक महान नबी हो, तभी उसके हाव भाव नहीं बदलते। You die with Christ, the insults of people and the praises of people will not affect you. जब आप मसीह के साथ मरते हो तो लोगों के अपमान और लोगों की तारीफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But the good news is not only that we are dead with Christ, पर सुसमाचार केवल ये नहीं कि हम मसीह के साथ मर गए, we are made alive in Christ. पर हम मसीह में जीवित बनाए गए हैं। The dead man cannot even forgive that man, but because we are alive in Christ, we forgive him also. वो मरा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाता, पर क्योंकि हम मसीह में जीवित हैं, हम उसको क्षमा भी कर सकते हैं। Wonderful life to die with Christ and rise with Him. ये एक अद्भुत जीवन है जहां हम मसीह के साथ मरते हैं और उसी में जिलाए जाते हैं। Then we say like Paul, it is no longer I that live, but Christ that lives in me. फिर हम पौलुस के समान कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। Make that your goal, my brother, sister. मेरे भाई मेरे बहन इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। I want this to be real in my life, you must say. आपको कहना है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में सच हो जाए। More and more and more. अधिक और अधिक और अधिक। People must see Jesus Christ in me. लोगों को मुझ में यीशु मसीह दिखना चाहिए। Your wife must see Jesus Christ in you. आपके पत्नी को आप में यीशु मसीह दिखना चाहिए। Husband must see Christ in you. आपके पति को आप में मसीह दिखना चाहिए। Children must see Christ in you.
आपके बच्चों को आप में मसीह दिखना चाहिए। Unconverted relatives must see Christ in you. नए जन न पाए हुए आपके रिश्तेदारों को आप में मसीह दिखना चाहिए। Try to preach the gospel to them if they don't see Christ in you first. अगर आपके अंदर वे पहले मसीह को नहीं देखते तो उनसे सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश न करें। Remember, Jesus lived for 30 years without preaching, and then only he preached. याद रखें कि यीशु मसीह बिना प्रचार करते हुए 30 वर्ष जिया, उसके बाद ही उसने प्रचार किया। We all have such a lust to preach to others. हम सबके अंदर ऐसी बड़ी लालसा होती है कि हम दूसरों को प्रचार करें। Stop it. उसे रोक दे। Live first पहले जिए and then preach. और फिर प्रचार करें, Your life back up your words. ताकि आपका जीवन आपके वचनों के पीछे खड़ा होगा। Someone said like this once कभी किसी ने ऐसा कहा to a hypocritical believer. किसी पाखंडी व्यक्ति से, Your life is speaking so loudly against Christ that I cannot hear the words you're speaking about Christ. आपका जीवन मसीह के विरोध में इतना जोर जोर से बात कर रहा है कि मसीह के लिए जो आप शब्द कहते हो मैं उसे सुन ही नहीं पाता। Did you hear that? क्या आपने उसको सुना? Your life is speaking so much against Jesus Christ that I cannot hear the words you're speaking about Jesus Christ. आपका जीवन मसीह के विरुद्ध में इतना जोर जोर से चीख रहा है कि मैं आप जो मसीह के लिए शब्द कहते हो सुन ही नहीं पा रहा। We need to live a little more before we speak. और इसलिए हम कुछ कहने से पहले हमें थोड़ा जीना चाहिए। Pray. प्रार्थना कीजिए, Lord, have mercy on me. परमेश्वर मुझ पर दया करें। I brought such dishonor to your name. मैंने तेरे नाम को इतना अनादर लाया। The way I've lived for so many years. जिस प्रकार मैं इतने वर्षों से जी रहा हूँ, I'm not going to be perfect tomorrow. मैं कल तो सिद्ध नहीं बनूंगा, From this moment, I'm going to press on to perfection. पर इस क्षण से मैं सिद्धता की ओर बढ़ने वाला हूँ। I've been lazy. I've not been running the race. मैं आलसी रहा हूँ, मैं इस दौड़ को नहीं दौड़ रहा हूँ। I allowed my thoughts to go in wrong directions. मैंने अपने विचारों को अनुमति दी कि वो गलत दिशा में जाए। Have any of you been watching pornography on the computer? क्या आप में से कुछ लोग कंप्यूटर पर पोर्नोग्राफी देखते हो? You say nobody is seeing you? आप कहते हो कि कोई मुझे नहीं देखता। Oh yes, all the demons in hell are watching you, looking at that filth on the computer and rejoicing. Ah, this child of God is seeing all this rubbish. और नरक के सारे दुष्ट आत्माएं आपको देखते हैं कि जब आप वो अश्लील चित्र देखते हो, और वे आनंद मनाते हैं कि ये जो परमेश्वर की संतान है ये ऐसी घटिया बातें देखता है। You watch pornography, you're making the demons in hell happy. अगर आप अश्लील बातें पोर्नोग्राफी देखते हो तो आप नरक के दुष्ट आत्माओं को खुश कर रहे हो, And you are making the angels sad. और आप स्वर्गदूतों को दुखी बना रहे हो। You can hide it from your wife and you can hide it from other people. आप अपने पत्नी से, दूसरे लोगों से इस बात को छिपा सकते हो, It is not hidden from the demons in hell. पर नरक के दुष्ट आत्माओं से ये बात छिपी नहीं है। And they are pointing to Jesus and say, Lord Jesus, this is the person who's claiming to be your child. और वे यीशु को देखकर कहते हैं, यीशु मसीह ये व्यक्ति है जो आपका संतान होने का दावा कर रहा है। Your action is making Jesus ashamed. आपके जो कार्य है उस वजह से यीशु मसीह को लज्जा होती है। Time you are tempted to see pornography on your phone or your computer, और इसलिए जब अगले बार आप प्रलोभित होते हो कि अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर आप पोर्नोग्राफी देखें, filthy picture, या कोई गंदा चित्र, remember the demons are watching. याद रखें कि दुष्ट आत्माएं देख रहे हैं। Not only you, the demons are watching. ना केवल आप पर दुष्ट आत्माएं भी देख रहे हैं, They are rejoicing at what you're going to do. और वे आनंद मना रहे हैं आप जो करने वाले हो उस पर। The angels are feeling sad. और स्वर्गदूत दुखी महसूस कर रहे हैं। And Jesus is really disappointed. और यीशु मसीह बहुत निराश है। And let that thought turn you away from sin. और इस विचार को आपको पाप से पीछे मोड़ने दे। If love for Jesus does not turn you away from sin, अगर यीशु मसीह के लिए प्रेम आपको पाप से पीछे नहीं मोड़ता, away from sin at least because you're making the demons rejoice by your sin. फिर कम से कम पाप से इस वजह से दूर रहे क्योंकि शैतान दुष्ट आत्माएं उस पाप की वजह से आनंदित होते हैं। Christ is coming soon. मसीह जल्द ही लौटने वाला है। Worldwide pandemic that's causing problems everywhere is one of the signs of his coming. इस संसार में जो महामारी फैली है ये एक चिन्ह है जो उसके आने के प्रति दर्शाती है। Since the time of Adam, there's never been a sickness like this that's gone all around the world. आदम के समय से ऐसे कोई बीमारी नहीं हुई है जो पूरे संसार में इस प्रकार फैली हो। What does it indicate? ये क्या दिखाता है? When these things happen, Jesus said, lift up your heads for your redemption is near.
यीशु ने कहा जब ये बातें होती है तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारे छुटकारे का समय निकट आ चुका है। I've lifted up my head. I'm waiting for my Savior to come. मैंने अपने सिर को ऊंचा उठाया, मैं इंतजार कर रहा हूं मेरे उद्धारकर्ता के आने का। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, I have poured out my heart to you, try to prepare you for the coming of Christ. मैंने अपने हृदय को आपके सामने उंडेला है आपको मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए। I hope you will take my words seriously. मैं आशा करता हूं कि आप मेरे शब्दों को गंभीरता से लें। You'll take God's word seriously. मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें। Judged ourselves, we will not be judged in the final day. अगर हम अपने आप का न्याय करेंगे तो अंतिम दिन में हमारा न्याय नहीं होगा। Don't have to judge your wife or your husband, just judge yourself. आपको अपने पत्नी या पति का न्याय करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप का न्याय करें। May God help us all. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। It's wonderful that these messages are all on YouTube. ये अद्भुत है कि ये सारे संदेश YouTube पर उपलब्ध है। You can go back and listen to it again. आप जाकर इनको वापस सुन सकते हो। Please do that. कृपया ये करें। And there are many, many messages of mine on YouTube in Hindi and English and other languages. और मेरे कई कई संदेश हिंदी में, इंग्लिश में और अलग अलग भाषाओं में है, On different subjects. अलग अलग विषयों पर। So you can even put the subject in that top line and select the subject you want a message on. और इसलिए ऊपर आप विषय में लिखकर चुन सकते हैं कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। YouTube at the top, there is a window on which you can put a subject and a name. YouTube के शुरुआत में आप नाम और विषय लिख सकते हो। You can look for Hindi messages. और वहां हिंदी मैसेजेस को आप ढूंढ सकते हो। You'll get all the Hindi messages. सारे हिंदी संदेश आपको मिलेंगे। Let us make use of the time to be ready for the coming of the Lord. आइए हम इस समय का इस्तेमाल करें ताकि प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Bow our heads before the Lord and close our eyes हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे so that we can concentrate on the Lord Jesus Christ. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगा पाए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, fill us with the Holy Spirit हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे so that we can live a life that pleases you. ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जो तुझे प्रसन्न करता हो। You gave your life for us, we want to give our life for you. तूने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, हम तेरे लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं। Help us not to live for money, हमारी सहायता करके हम पैसे के लिए न जिए, not to live to please ourselves, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए हम न जिए, not to live to please our parents, हमारे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए हम न जिए, to please you, पर तुझे प्रसन्न करने के लिए and to forgive everyone. और सबको क्षमा करने के लिए, Love our enemies, अब हमारे शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, speak the truth, सत्य कहने के लिए to hate sin. और पाप से नफरत करने के लिए। Give us the power of the Holy Spirit for this. इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दे दीजिए। Pray, Lord Jesus, in your name. प्रभु यीशु, हम आपके नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।